Hello students, welcome to all of you. In this lecture, we will study about second chapter of the physics, the current electricity. In the last lecture, we have studied about the electric current and the drift velocity. So all of you know what is drift velocity? The average velocity with which electrons drift towards the positive plate of the conductor we have studied, and the formula for the drift velocity was E tau upon m with minus sign. So this we have studied in the last lecture. Today we are going to discuss the relation between current and drift velocity. Drift velocity ਦਾ करंट नाल की रिलेशन है वो ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ आई हैव अ कंडक्टर, मेरे को एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसका कोई लेंथ है L, L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A। सॉलिड कंडक्टर है पूरे का पूरा, तो इसका जो वॉल्यूम हो गया, volume of this conductor, that is A into L. Clear? Now suppose N is the number density of electrons. Number density of electrons in the conductor. Number density of electrons means number of electrons per unit volume. इधे unit volume च कितने electrons ने N, तो पूरे दे पूरे वॉल्यूम दे विच कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए अपने को, कैपिटल एम नाल लिख दिता मैं इसनु, इट विल बी ALN, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर। नाउ द चार्ज, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स ने ऊपर चार्ज कितना होएगा, एक इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज होता है E, माइनस ही होता है, माइनस मैं वैसे नहीं कंसीडर कर लिया, मैंने जस्ट चार्ज देखना है कितना होएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को टोटल चार्ज कितना हो गया ALNE। क्लियर होगी गल, डेफिनेटली माइनस च होएगा, ये चार्ज हो गया। ओके, ना हुन जो कंडक्टर है इससे मैंने बैटरी कनेक्ट करती, बैटरी नाल इसनु कनेक्ट करता, जो ए वाली साइड है इसनु ऊपर पॉजिटिव लगाता, तो जो ए वाली साइड है इसनु ऊपर की लगाता, नेगेटिव लगाता। व्हेन वी कनेक्ट इट विद द बैटरी, बैटरी कोई वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है V, लेट अस सपोज, तो की होएगा इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेटअप। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स ने दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव प्लेट वाल मूव करनगे। कितनी वेलोसिटी नाल मूव करनगे, डेफिनेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाल। सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव with drift velocity like this in this direction. Clear? Now time taken by the electron to go from one end to the other end, कितना time लगेगा, time is distance upon speed, distance is total distance, this is L, upon speed is drift velocity, so this is the time taken, this is the charge on the conductor and this is the time taken by the charges to pass across the conductor. Now I want to find out the current flowing. When charges will move, when electrons will move, then definitely some current is flowing in the conductor. If electrons move in this direction, the current will move in this direction, so this will be the direction of current in the conductor. So what is the current flowing? Charge upon time. Charge is ALNE divided by time is L upon VD. L is cancelled, so current is ANEVD. So this is the current flowing in the conductor. इथे थोड़ा ये अंदाजा भी लगाओ भी जो करंट है किहड़े-किहड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करदा है। देखो जो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰ ਜਿੰਨੀ ਥਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਕੰਡ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन। एंड थर्ड फैक्टर इज ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिन्ने इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करनगे उन्ना ही जेड़ा करंट है की होएगा, ज्यादा होएगा। सो करंट डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री फैक्टर्स। करंट डेंसिटी, इसनू मैं जे नाल डिनोट करांगा। करंट डेंसिटी नू एक वैक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी जे। थोड़ा ध्यान नाल इस टर्म नू समझना है, करंट डेंसिटी की चीज है। अच्छा, सपोज करो मेरे को कोई, दिस इज सरफेस एरिया एस, लाइक दैट दिस, जिमें कोई सरफेस एरिया सपोज करो, दिस इज द सरफेस एरिया, इस तरीके नाल पे है सरफेस एरिया एस। ठीक है जी, मैं थोड़ा इस तरह ला लेना इन द फॉर्म ऑफ शीट। ओके, दिस इज द सरफेस एरिया एस। ओके, इस दे विचों कोई करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज सारे सरफेस दे विचों आई इज द करंट फ्लोइंग। ते करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, नॉर्मल टू दिस सरफेस एरिया। ठीक है जी, जिहड़ा सरफेस एरिया मैं लै रहा यह करंट दे नॉर्मल है, करंट इस तरह जा रहा है ते सरफेस एरिया इस दे नॉर्मल है। अच्छा, एक चीज़ इत्थे आपां होर क्लीयर कर रही है, आपां एरिए नूं वैक्टर क्वांटिटी लै लैंदे आ कुछ प्रॉब्लम्स दे विच। तां जेकर मेरे को सपोज करो आ एरिया है, ठीक है जी, इस तरीके नाल पे है, जे मैं इसनूं सिंपल स्केलर लै रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, एस एरिया हो गया, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होएगा 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर। बट जेकर मैं इसनूं वैक्टर क्वांटिटी लै रहा तो फिर की होएगा, इसनूं मैं जो रिप्रेजेंट करूंगा तो इहदी जिहड़ी डायरैक्शन है एरिया वैक्टर दी, वो हमेशा एरिए दे नॉर्मल हुंदी है, परपेंडिकुलर हुंदी है। सपोज करो मेरे को एरिया है, ठीक है जी, इस एरिए की जिहड़ी डायरैक्शन होएगी इस दे परपेंडिकुलर होएगी इस तरीके नाल। आ मैं डायरैक्शन शो कर रहा, ठीक है जी। तो इत्थे मैं एस वैक्टर जो रिप्रेजेंट करूंगा वो मैं किवें करूंगा, इहदा मैग्नीट्यूड कितना है एस इंटू आ डायरैक्शन, डायरैक्शन नूं आपां लिख दिंदे आ एन कैप। एन कैप की है, बेसिकली यूनिट वैक्टर है जिहड़ा इस एरिए दे की है, नॉर्मल है, ते इसकी की रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लीयर होगी जी गल। हुण आपां एक एरिया लिया एस, इस चों कोई करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है जी। ते आपां इस पॉइंट ते पी पॉइंट है, पी पॉइंट ते आपां करंट डेंसिटी है जो वो फाइंड आउट करनी है। तो करंट डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमेशा गल की करते हैं आपां, करंट डेंसिटी पर डेफिनेशन की गल करिए, इट इज द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, करंट डेंसिटी एट सम पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट provided the area should be normal to current। देखो दो गल्लां आपां कहियां कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, एक गल होगी, तो दूसरा जिहड़ा मैं एरिया लै भी रहा हूं किस तरह होना चाहिए, वो मेरे करंट दे नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है जी। तो इत्थे मैंने एरिया लिया, करंट लिया आई, करंट जिहड़ा हैगा एरिया वो करंट दे नॉर्मल लिया होया है। ये भी हो सकता है इत्थे जिहड़ा करंट है यूनीफॉर्म ना हो, किते ज़्यादा हो सकता है, किते घट हो सकता है। फिर इस केस च आपां की करांगे, आपां एक स्मॉल एरिया कंसीडर करांगे, डेल्टा एस। दिस इज स्मॉल एरिया डेल्टा एस। ये इन्ना स्मॉल है जिहदे उपर जिहड़ा करंट है इस चो जो फ्लो कर रहा है वो की है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। वो मैं ले लिया करंट की है, कांस्टेंट है। सपोज करो इसका एरिया डेल्टा एस ले लिया, मैं अलग तो बना लेना, आ एरिया आपां लिया डेल्टा एस। हुण जेकर मैं वैक्टर क्वांटिटी च लवांगा तो इस तरह रिप्रेजेंट करांगा, डेल्टा एस वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड डेल्टा एस इंटू एन कैप, एन कैप आ डायरेक्शन है। ठीक है जी। तो जो करंट फ्लो कर रहा है और मैं अलग तो इत्थे बना लेना, करंट फ्लो कर रहा है, करंट देखो एरिया दे की है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो आप ये कह सकते हैं नॉर्मल है, जिहड़ा एन कैप है वो की हो गया, पैरेलल हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एंगल कितना बन रहा है, देखो 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है जी। इस एरिए दे देखिए आप परपेंडिकुलर नॉर्मल जा रहा है करंट, ओके, बट इस नाल एन कैप नाल एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, पैरेलल हो गया। ठीक है जी। तो डेल्टा एक्स वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू एन कैप। जो करंट फ्लो कर रहा है मैं सपोज कर लेना स्मॉल करंट है डेल्टा आई। तो करंट डेंसिटी वेक्टर है जिहड़ा वो की होएगा, इट इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो आप डेल्टा एस नाल डिवाइड करता,
करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अच्छा अगे मैं लिमिट भी लगा सकदा ज़्यादा वधिया लिखण लई, जिहड़ा एरिया है बहुत स्मॉल है, इट इज अप्रोचेस टू जीरो, जिहड़ा एरिया इट इज अप्रोचेस टू जीरो, तो ये अपने कोल आ गया। ठीक है जी, इनू ਆਪਾਂ बाद ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह भी लिख सकते हैं di by ds, करंट डेंसिटी वैक्टर कैन बी रिटन एज di by ds, क्योंकि जो डेल्टा फंक्शन होवे ते डेल्टा फंक्शन की लिमिट अप्रोचेस टू जीरो हो जाए तो याद रखना डेल्टा फंक्शन किस च कन्वर्ट हो जाता है, डेरिवेटिव च कन्वर्ट हो जाता है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं di by ds। क्लीयर हो गया जी। अच्छा हुण ध्यान दिओ, जेकर जिहड़ा करंट इस पूरे एरिया चो फ्लो कर रहा है यूनीफॉर्म है, ऐ नहीं है भी इत्थे ज्यादा इत्थे घट है, नॉन यूनीफॉर्म नहीं है, पूरे एरिया चो कांस्टेंट करंट ही फ्लो कर रहा है, तो आप सिंपली भी ले सकते हैं जे फिर अपन स्मॉल एरिया लैन की कोई लोड़ नहीं, क्योंकि इत्थे मैं स्मॉल एरिया तां कंसीडर किया सी जेकर करंट वेरी कर रहा है, तो मैं इन्ना स्मॉल एरिया कंसीडर करूंगा जिहदे उपर करंट की होवे कांस्टेंट होवे। ठीक है जी, जे सारे एरिया के उपर ही करंट कांस्टेंट है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, पर टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, तो टोटल एरिया कितना है एस, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू आई बाई एस। कई बार एरिया नू ए भी लिख देंगे तो आई बाई ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तुहाडे कोल करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड दैट एरिया शुड बी नॉर्मल टू द करंट। गल समझ आई? ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਦੇ यूनिट्स दी, तो करंट का यूनिट देखो जिहड़ा हैगा J इज इक्वल टू I बाई A अपने कोल आ गया, करंट का यूनिट हैगा एम्पीयर, तो एरिया का यूनिट हैगा मीटर स्क्वायर, तो जो करंट डेंसिटी का यूनिट है दैट इज एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर। तो देखो आप एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, I इज इक्वल टू ANEVD। क्लियर? अच्छा जेकर आप देखिए जो करंट डेंसिटी है वो I अपॉन A है, जेकर इत्थे आप वैल्यू पुट कर दिए I दी डिवाइडेड बाय A, तो A कैंसिल हो गया, तो करंट डेंसिटी का अपने को एक होर रिलेशन आ गया J इज इक्वल टू NEVD। यह स्केलर फॉर्म च लिखे, जेकर मैं इसनू वैक्टर फॉर्म दे विच लिखा तो इट विल बी NEVD वैक्टर, तो इट विल बी लाइक दिस इन वैक्टर फॉर्म। अच्छा ये देखो जो आ फैक्टर है NE फैक्टर है, इनू आप कहांगे चार्ज डेंसिटी, इट इज चार्ज डेंसिटी, दैट मीनस यूनिट वॉल्यूम दे विच कितना चार्ज हैगा, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, हुण चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम देखो ध्यान नाल, तो चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, पर यूनिट वॉल्यूम का यूनिट की हो गया मीटर क्यूब, तो चार्ज डेंसिटी के जो यूनिट ने कूलम पर मीटर क्यूब होंगे ने। ठीक है जी, ड्रिफ्ट ये VD तुहानूं पता ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अच्छा इत्थे थोड़ा ਆਪਾਂ डायरेक्शन की गल करिए, हुण जेकर देखो मेरे को हैगे ने पॉजिटिव चार्जेस, फॉर पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए जी NE वैल्यू है ये की आ जाएगी अपने को पॉजिटिव आ जाएगी। हुण जेकर ये पॉजिटिव आ गई तो मतलब J वैक्टर इज इक्वल टू प्लस NEVD वैक्टर, या मतलब करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सेम होएगी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होएगी फॉर पॉजिटिव चार्जेस। नाउ जेकर मेरे को हैगे ने नैगेटिव चार्जेस, जेकर मैं नैगेटिव चार्जेस की गल करा तो NE की हो जाएगा नैगेटिव, जे NE नैगेटिव हो गया तो J वैक्टर मेरे को माइनस NEVD आ जाएगा। तो इत्थों क्लीयर होएगा भी जिहड़ी J वैक्टर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे की होएगी ओपोजिट होएगी। गल क्लीयर होगी? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक अपने को है J इज इक्वल टू NEVD। ओके अच्छा तो एक चीज़ नाल दी नाल आपां होर देखिए, जेकर हुण ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो भी अपन पता है E टाउ बाई M, तो ये वैल्यू जेकर मैं इत्थे पुट कर दिना तो मेरे को रिलेशन देखो की बनेगा, स्केलर फॉर्म च लिखूंगा मैं एक बार, तो J इज इक्वल टू NE टाउ बाई M। क्लियर? इट बिकम्स NE स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E। क्लियर है जी? हुण इत्थे देखो ये वाला फैक्टर देखो ध्यान नाल सारा, N की चीज़ है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक कांस्टेंट है, एक कंडक्टर वाली नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्नी रहेगी, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे समय नाल, नहीं हो सकता बेटा, कांस्टेंट है। E 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम में वैसे ही कांस्टेंट है। टाउ एक ही चीज़ है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, पिछले लैक्चर च पढ़िया सी आपां, ये भी एक मटीरियल का एक कंडक्टर का कांस्टेंट है। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है।
तो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट ने, ठीक है जी। तो ये सारे फैक्टर्स अपने कोल की ने कांस्टेंट। इस कांस्टेंट में पुट करूंगा सिग्मा, सिग्मा पुट करूंगा। देखो ध्यान नाल, सिग्मा जिहड़ा हैगा इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो मेरे को आ गया J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा की चीज है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। एक ही है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट ਨੂੰ मैं नाम की दे रहे हैं, इसनों कंडक्टिविटी की कहने हैं इस कंडक्टर दी कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। तो J इज इक्वल टू सिग्मा, ये रिलेशन आ गया। वैक्टर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इसनों इस तरह लिख सकदा J वैक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वैक्टर। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਓਹਮਸ ਲੋ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, याद रखना है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। बेटा अपने को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओहम्स लॉ। बड़ा ही सौखा जा सिंपल जा टॉपिक है, बट इसनों बड़े ही ध्यान नाल तुसीं समझना है। तुसीं जदों भी हायर क्लासेस दे विच जाओगे, कुछ बच्चे तुहाडे च हो सकता है इलैक्ट्रिकल दी इंजीनियरिंग करनगे, उत्थे बड़ा काम आएगा उन्हां नूं इह ला। ते आपां नूं 12th क्लास दे विच भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला मैं तुहानूं दस दियां जो ये लॉ है, एक जर्मन फिजिस्ट ते मैथेमैटिशियन सर जॉर्ज साइमन ओहम ने यह लॉ जो दिता सी, ते उन्हां दे नेम ते ही यह जो लॉ है इसका नाम है जो है ओहम्स लॉ। तो देखो एक चीज़ पहला सिंपल मैं तुहाडे नाल शेयर करदा, तुसीं अपने घर दे विच कदे ना कदे देखिया होवेगा भी देखो वोल्टेज ना पिछों वोल्टेज वध जांदी है। जो वोल्टेज वध जाती है आप देखते हैं अपने जो बल्ब ने बहुत ज़्यादा ग्लो करन लग जाते हैं, तो वोल्टेज जे ज़्यादा वध जे तो यह भी हुंदा भी वो बल्ब ने जिहड़े सड़ जाते हैं। उन्हें क्यों होया कि जो वोल्टेज वधी तो बल्ब तो जो करंट लंघ रहा सी करंट वध गया, तो ज़्यादा करंट कारण बल्ब ज़्यादा ग्लो किया तो सड़ गया। तो कई बार ये भी आम ही हुंदा है भी समटाइम्स जो वोल्टेज है दैट डिक्रीजेस, वोल्टेज घट जाती जिस करके जो बल्ब्स ने डिम हो जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज के घटन नाल करंट घट गया, जो करंट घट गया तो बल्ब का जो ग्लो है वो की हो गया डिम हो गया। तो इत्थे एक बड़ी ऑब्जरवेशन है, सिंपल जी ऑब्जरवेशन है जी अपने घर च कर लैंदे आ। तो इस तो आप सीख लें भी जी इसका मतलब कि जो करंट लंघ रहा है किसी सर्किट चों वो डिपेंड काते कर रहा है वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह दें आप इसनों। तो करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट चों वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस से। जेकर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होएगा करंट ज़्यादा होएगा, जेकर पोटेंशियल डिफरेंस घट होएगा करंट घट होएगा। बस यही ओहम्स लॉ है। तो इसनों प्रॉपर सीखते हैं आप। तो मेरे को मैं एक सर्किट लिया, सर्किट के एक रजिस्टेंस ले लिया मैं, रजिस्टर है कोई या कंडक्टर कह लो जिसकी रजिस्टेंस आर है। एक बार इसनों हटा दिया मैं, तो इस नाल मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर ली। एक कोई बैटरी है, इसकी कोई पोटेंशियल डिफरेंस है V, पर इसके ऊपर मैं एरो लगाया था, मतलब इसके ऊपर एक नॉब लगी है जिसनों घुमा के मैं इसकी वोल्टेज है जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन्होंने वेरी कर सकता। तो रजिस्टेंस है एक, उसनों बैटरी नाल लगाता, तो यह की है जिस नाल आपां ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस सर्किट के करंट नूं मैजर करने लई मैं सीरीज़ दे विच की लगा लिया, एममीटर लगा लिया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं मैजर करना है, तो ये पैरेलल दे विच मैं की लगा लिया, वोल्टमीटर लगा लिया। ये अपना सर्किट डायग्राम है सिंपल जा। ठीक है, हुण जदों आपां इसनूं कनैक्ट करता, स्विच ऑन करता, तो सर्किट चों करंट फ्लो करेगा, यू नो पॉजिटिव टू नैगेटिव। तो इस तरीके नाल करंट की जो है वो डायरैक्शन होएगी। क्लीयर है जी, करंट इस तरीके नाल फ्लो करेगा। हुण जिहड़ा करंट इस चों फ्लो करेगा तो स्टेटमेंट की है ओहम्स लॉ दी, की स्टेट किया, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के एंड्स से मैं जिन्ना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा उहदी अकॉर्डिंग ही करंट होएगा। तो करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड, बस कुछ कंडीशंस रखियां, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, जो भी फिजिकल अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स ने कुछ, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, दिस शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि जो फैक्टर चेंज हो जाएंगे तो कई बार करंट दे विच कुछ चेंज आ जाती है, ये कांस्टेंट रहने चाहिए ने। तो इसका मतलब कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा V दे पोटेंशियल डिफरेंस दे। क्लीयर, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये क्रॉस जो वोल्टेज होएगी पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिन्ना इचों की पास करेगा करंट दे। एक ही गल है। तो इत्थों हुण मैं इक्वैलिटी दे जो इक्वैलिटी का साइन है, सॉरी जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है
इसनूं इक्वैलिटी दे साइन च कन्वर्ट कर रहे हैं तो नाल एक कांस्टेंट लगेगा r, वेयर r इज अ कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट नूं आपां की कहने आ, रेजिस्टेंस। इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो आपां कंडक्टर यूज किया है ਉਹਦੀ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होएगी, सो r इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो अपने को एक रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू ri, वेयर r इज अ कांस्टेंट। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ i ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ v/i ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਓਹਮਸ ਲਾਅ ਨੂੰ। ਡਿਫਾਈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ v ਤੇ i ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। the ratio of the voltage applied to the conductor and current flowing through the conductor is always constant। गल समझ आई? मतलब जेकर हम तुसी ग्राफ ड्रॉ करो वोल्टेज दे विच एक्स एक्सिस वाल मैं वोल्टेज ले ली, वाई एक्सिस वाल मैं करंट ले रहा, इथों मैं वोल्टेज वेरी कर रहा, कितनी वोल्टेज है मेरे को रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर तो, ते करंट दी रीडिंग कितनी है मेरे को रीडिंग आएगी एम मीटर तो। तो रीडिंग्स लेके इफ आई एम ड्राइंग अ ग्राफ द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ तुहाडे कोल आएगा। ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब की है भी हर एक पॉइंट के उपर जो रजिस्टेंस है वो की है? कांस्टेंट है। तो ओहम्स लॉ दे लई जिहड़ा ग्राफ है किस तरह बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। इन्नी गल समझ आई? अच्छा हुण देखो पहला की कहा गया जो ये लॉ डिवेलप होया, तो कुछ एक दो गल्लां होर तुहानूं इहदे बारे दसां। जो लॉ डिवेलप होया तो कहा गया भी जिहड़ा ये रेशो है ये सारे डिवाइसिस लई कांस्टेंट रहेगी। द रेशो ऑफ वोल्टेज टू द करंट is always constant for all the devices। तो सारे डिवाइसेस ही ओहम्स लॉ ओबे करनगे, बट एवें नहीं सी। कुछ डिवाइसेस लिए ये रेशो कांस्टेंट नहीं सी तो वो लॉ ओहम्स लॉ नू ओबे नहीं करदे सी। तो देखो डिवाइसेस नू आपां दो कैटेगरी दे विच डिवाइड करता। ठीक है जी। एक अपने को लगे ने ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक डिवाइसेस तो ओहमिक डिवाइसेस की ने अपने को आपां की करना है? कोई भी डिवाइस जो चेक करना है इस तरह ही करना है। आपां डिवाइस ले लिया, सपोज करो अपने को इत्थे कोई बल्ब हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है। तो मैं कोई सपोज करो मेरे को इत्थे कोई कंडक्टर है या बल्ब है या कोई फैन है, तो यही सर्किट मैं लगा लिया। ठीक है जी। इससे कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाता, एम मीटर लगा लिया, वोल्ट मीटर ला लिया। मैं की किया? वोल्टेज ते करंट दे विच ग्राफ ड्रॉ करके वेखिया। जेकर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया मतलब वोल्टेज टू करंट रेशो की आ गई? कांस्टेंट आ गई। इसका मतलब वो जिहड़ा डिवाइस है ओहम्स लॉ नू ओबे करता है। ओहम्स लॉ ओबे। तो ओहमिक डिवाइस की ने? विच ओबेज ओहम्स लॉ। इतनी गल क्लियर होगी? द डिवाइसेस विच ओबेज ओहम्स लॉ दोज आर कॉल्ड ओहमिक डिवाइसेस। दैट मीन्स फॉर सच डिवाइसेस वोल्टेज टू करंट रेशो इज अ कांस्टेंट। Voltage is directly proportional to current। Graph is a VI graph is a straight line। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਓਹਮਸ ਲਾਅ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, V/I ਰੇਸ਼ੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾइन है, ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ओहमिक डिवाइसेस कहांगे। लाइक फैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एटसेट्रा। ठीक है। नाउ मैं तुहानूं की कह रहा, मैं हुण एक डिवाइस लै रहा डायोड, PN जंक्शन डायोड। वैसे ये बारे आप ज़्यादा गलबात 9th चैप्टर च करांगे सैमीकंडक्टर फिजिक्स दे विच। तो इत्थे मैं इस कंडक्टर की जगह ते मैं जस्ट की किया? एक डायोड लगाता। बाकी सर्किट आपां सारा सेम है आलमोस्ट। तो आप यही एक्सपैरीमेंट जो आप किया सी, नाउ वी आर डूइंग दिस एक्सपैरीमेंट विद द डायोड। ठीक है जी। तो आपने उस तरह किया, यदि वोल्टेज है जो इनक्रीज की, जो वोल्टेज इनक्रीज की, करंट दी रीडिंग्स एम मीटर तो आनगियां। तो आप फिर की किया? आप वोल्टेज ते करंट दे विच ग्राफ ड्रॉ किया। एंड जो ग्राफ आएगा तुहाडे कोल वो देखो किस तरह का आएगा ग्राफ निकल के। इट विल बी लाइक दिस। क्लीयर? हम देखो ग्राफ नूं देखो ध्यान नाल। पहली गल तो देखो तुहानूं लग रहा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। इत्थों ये भी पता लग रहा जी V ते I दी रेशो है, ठीक है जी, वो की है? नॉट कांस्टेंट है। इत्थे रेशो कुछ होर होएगी, इस पॉइंट ते रेशो कुछ होर होएगी, इस पॉइंट ते रेशो कुछ होर होएगी। वोल्टेज ते करंट दी रेशो सेम नहीं है, इट इज डिफरेंट, इट इज वेरिंग। सो V/I रेशो इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब V है जो
वो आई दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल तो होएगा आई दे, बट वो लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। गल क्लीयर होगी जी। इत्थे दा मतलब ये भी आप सीख सकते हैं जिहड़ा आर है इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, क्योंकि जिहड़ी ग्राफ बी बटे आई रेशो है यही अपने कोल आर हुंदा है, इट इज आर। ते आर है जिहड़ा की है एक कांस्टेंट है नहीं, नॉट कांस्टेंट है। इसका मतलब की है ओहम्स लॉ इज नॉट ओबेड। तो इस तरह के डिवाइसेस ਨੂੰ मैं की कहूंगा नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहूंगा। तो नॉन ओहमिक डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस which does not obey Ohm's law। ये गल क्लियर होगी जी। which does not obey Ohm's law, for which B by I ratio is not constant, for which R is not constant। गल क्लियर होगी। Now we will do deduction of Ohm's law। Ohm's law ਨੂੰ ਆਪਾਂ deduce ਕਰਾਂਗੇ, derive ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੈਂਥ ਹੈ L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो इस नाल मैंने की अप्लाई करता, कुछ कोई बैटरी जोड़ती इस नाल जिसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस है V। क्लियर। तो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड सेटअप होएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा V by L। क्लियर होगी गल। तो उन्हें सर्किट जो करंट फ्लो करेगा लेट अस सपोज I दैट इज ANEVD। क्लियर। फिर VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा VD की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं दैट इज E टाउ बाय एम। टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ बार भी लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू मैं इतने पुट कर लग गया तो मेरे को की आ जाएगा ANE ई टाउ बाय एम। क्लियर हो गया। अच्छा इस तो नैक्सट स्टैप मैं ई की जी वैल्यू है वह भी पुट कर लग गया दैट इज B by L फ्रॉम देयर। सो I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर हो गया बेटा जी। तो ई की वैल्यू मैं पुट करती V by L। ओके टाउ दा टाउ आ गया, इधर लिखता मैं टाउ, तो डिवाइडेड बाय मेरे को की आ गया M आ गया। ठीक है जी। तेन थोड़ा जा रीअरेंज करदा मैं तो मेरे को की आ जाएगा I इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू A by L V। क्लियर। एंड फ्रॉम हेयर मेरे को वोल्टेज क्या आ जाएगी, फैक्टर सारा इधर ले जाए जेकर मैं M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाय A नाल की अपने को आ जाएगा I। ठीक है जी। अच्छा हम देखो फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर ऑफ पर्टिकुलर मटीरियल, एक कंडक्टर है मेरे को किसी एक मटीरियल का बनया हुआ है, सपोज करो आयरन का बनया या कॉपर का बनया सपोज करो। उन्हें पर्टिकुलर कंडक्टर की खास स्पैसिफिक शेप है। इस कंडक्टर के लिए तो M मास ऑफ इलैक्ट्रॉन कांस्टेंट है, N नंबर डेंसिटी। जो मैं कॉपर लिया तो कॉपर लिए मैं किसी भी तरह का कंडक्टर बनावा, किसी भी शेप का किमें भी बनावा तो वो मेरे को N की है कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी E कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम भी मटीरियल कांस्टेंट है। अच्छा मैं यही कंडक्टर ले रहे हैं तो यदि लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। तो सारा जो फैक्टर है सारा फैक्टर इट इज कांस्टेंट। तो इन्हों मैं की पुट कर रहा, दिस कांस्टेंट इज R इज इक्वल टू Ri which is the equation of Ohm's law where here R is constant। R दी जो वैल्यू है, R दी वैल्यू अपने को कितनी आ गई, R बराबर है M डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ L बाय A। ये अपना रजिस्टेंस आ गया R। तो एक पर्टिकुलर कंडक्टर दे लई जो तक एक पर्टिकुलर कंडक्टर ले रहे हैं जिसकी खास शेप है, लेंथ है, एरिया है, तो वो लिए सारा फैक्टर की है कांस्टेंट है। इसका मतलब R की है कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो इस तरह जो V इज इक्वल टू RI है ਆਪਾਂ ਇਹ ओहम्स ਦਾ ਲਾ ਹੈ जो उसਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ है। आई थिंक ਇੱਥੇ तक ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होगा। थैंक यू।